Okay, so in previous class we have discussed the laws of reflection. So today we'll be discussing some terminologies related to mirror. Sir, Hmm? sir, I have a question. Yes. Sir, according to what I've read, sir, there are theories about the way the light travels. There was a theory that says that light travels in form of particles, and the other one said that light travels in form of waves. And sir, Yes. after that, it said that some facts of the light transport can only be explained by the particle theory, and some others are only proven by the that beam theory, like particles travel in Yes. form of a wave. Sir, how can there be two different modes of motion in a light? See, the current theory of light suggests that in today's scenario, we say that light is dual by nature. Okay. In modern physics, okay, till today, what we have understood about light, we suggest that light is dual by nature. Dual means it is both particle as well as wave by nature, because there are many evidences or experiments which you can say that suggest light is particle, and there are many evidences which suggest that light is wave. For example, suppose you take a piece of sodium metal and you allow some light to incident on the surface of the metal. It was observed that once you allow the light to incident on the surface of sodium metal, the sodium metal releases electron on its surface. So sodium atom के shell में जो electrons binded थे, they become free when light incidents on it. ऐसा होता है इसलिए because किसी सोडियम के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे जब लाइट टकराती है, तो लाइट क्या करता है, अपना जो मोमेंटम होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को देता है, और एक कोलोजन होता है लाइट का इलेक्ट्रॉन के साथ, और उससे इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है. ओके, सो दिस थियरी सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. एक पार्टिकल आया, दूसरे पार्टिकल से टकराया, उसको धक्का देकर उसको फ्री कर दिया. ओके, सो द phenomena wherein you incident a light on the surface of metal and a metal releases free electron, this phenomena is called as photoelectric effect. And this photoelectric effect was successfully demonstrated by Einstein, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन द ईयर 1907. ओके, सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, वर्ल्ड वाइड अक्लेम किया गया आइंस्टाइन को, इस थियरी ने सजेस्ट किया कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल जैसा. बट साथ ही साथ लाइट वेव जैसा भी बिहेव करता है, ये बात भी याद रखना, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व लाइट हैज अ टेंडेंसी टू स्प्रेड. जब आप बल्ब ऑन करते हो तो बल्ब से लाइट रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट नहीं होती है, वो स्प्रेड होती है इन ऑल डायरेक्शंस. एक रूम में लाइट ऑन करोगे तो दूसरे रूम तक, एडजेसेंट रूम तक भी उसका इल्यूमिनेशन जाता है. Okay, so light has a tendency to spread in all direction, just like a wave, just like an energy. Okay, so this behavior of spreading of light, okay, the spreading of light is called as diffraction. So this behavior of spreading of light, also called as diffraction, is shown only by waves, only by energy. सिर्फ waves spread होती है, light भी spread होती है, तो light को हम wave भी कहते हैं. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सजेस्ट करता है लाइट पार्टिकल है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट सजेस्ट करता है लाइट वेव है. आज की तारीख में हम लाइट को ड्यूअल मानते हैं.
Okay. Yes, sir. Now we discuss some terminologies in mirror. और सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम मिरर की पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. So how do we define center of curvature? It is the center of an imaginary sphere of which mirror is a part. ये इसका डेफिनेशन है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं एक स्फेरिकल मिरर ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर. अब अगर मैं इस मिरर के कर्वेचर को, इस कर्वेचर का मतलब कर्व्ड सरफेस, मिरर के इस कर्वेचर के स्फीयर को कंप्लीट करूं तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा. तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी स्फीयर, जिसका पार्ट कौन है? मिरर खुद है. सो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो इट इज द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर of which mirror is a part. Such a center is called as center of curvature of mirror. Okay. फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी है which is called as radius of curvature, denoted by capital R. अब ऑब्वियस सी बात है, it is the distance between center of curvature and pole. It is the distance between center of curvature and pole. अब ये pole क्या होता है देखते हैं. So suppose this is the center of curvature, center of an imaginary sphere of which mirror is the part. ओके, इसके एग्जैक्टली सामने एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पोल, जो कि मिरर पे लाई करता है. ओके, पोल एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर का जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है. मिरर के सरफेस को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला पॉइंट होता है पोल. सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ मिरर. ओके, ऑब्वियसली सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस ही कहते हैं हम उसको, और उसी का डेफिनेशन हमने लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. Distance between center of curvature and pole is called as radius of curvature. बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है. अब क्योंकि हमने पोल की बात की है तो हम पोल को भी डिफाइन कर देते हैं. इट इज द पॉइंट ऑन मिरर that splits the mirror into two equal parts. It is the point on the mirror that splits the mirror into two equal parts. तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
ओके, डेफिनेशंस आपको नोटबुक में लिखनी है। फिर देखिए फोर्थ टर्मिनोलॉजी है which is principal axis. Principal axis. It is a line joining the center of curvature and pole. So मान लीजिए ये हमारा मिरर है. This is the center of curvature, this is the pole. So the line joining center of curvature and pole is called as, this entire line is called as principal axis. Okay, इस imaginary line को हम कहते हैं principal axis. Then fifth terminology is focus. It is a point on principal axis where a parallel beam of light converges or appears to converge और appears to converge. अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन. So suppose we take a concave mirror और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. शायद यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर पोल होगा. अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे लेंगे. ओके, पैरेलल लाइट का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइट को हम पैरेलल कहते हैं. अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी वो पता करने के लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल. तो याद रखना, कभी भी हम किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर हमें जब नॉर्मल बनाना हो, ओके, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा मैथ्स में, किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाना हो तो उस पॉइंट पर जहाँ नॉर्मल बनाना है उसको आप किससे जोड़ोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. इसे हम नॉर्मल कहते हैं. इफ यू वांट टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन द कर्व्ड सरफेस at a point, join that point with the center. It is called as a normal at that point. So आप देख सकते हो नॉर्मल के साथ ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल के एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल के दूसरे तरफ क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगी.
सो आप देख सकते हो एक पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट हो रही है, एक पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर लाइट रे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where a parallel beam of light converges। ठीक इसी तरह से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, तो ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक पैरेलल लाइट रे लूंगा, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा तो इस पॉइंट को किससे जोड़ूंगा, सेंटर से। सो ये बन गया हमारा नॉर्मल। सो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन वन साइड ऑफ नॉर्मल, ऑन द अदर साइड क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लाइट रे यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब आप देखोगे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, इसको हम कहते हैं डाइवर्ज हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, यहाँ पर देखोगे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। ओके, लेकिन लाइट का अगर आप देखोगे लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये है रिफ्लेक्ट होने के बाद, लेकिन इस पाथ का अगर मैं ट्रेस पीछे खींचूं, इमेजिनरी लाइन, ओके इमेजिनरी लाइन पीछे खींच रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पीछे से इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ, जहां पर ये इमेजिनरी लाइन मीट होगी उस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सो आप यहाँ पर देखोगे इट इज फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस और अपीयर्स टू कन्वर्ज। So focus is a point on principal axis where parallel beam of light converges or appear to converge। converge हो नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि हो सकती थी। करेक्ट। सो or appears to converge is a phrase for convex mirror and converges is a phrase for concave mirror। Okay, then we have a next term called as focal length। so f और p के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, focal length। distance between focus and pole is called as focal length। करेक्ट। ये डायग्राम्स हम बाद में भी ड्रॉ करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आने वाले टॉपिक्स में हम ड्रॉ करने वाले हैं डायग्राम्स को। सो वी डिफाइन द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन डेफिनेशंस का, नोटबुक में लिखना है आपको। ओके, सो फाइनली हम समराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस that joins the pole, center of curvature and focus। ओके, सो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। सो एक बात याद रखना बच्चों की, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, this point of focus is a bisector of radius of curvature. So focus bisects the radius of curvature, means focus is the midpoint of radius of curvature. So we can say that this focal length is half of radius of curvature, or radius of curvature is twice of focal length. ओके, ये चीज़ें ध्यान रखना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन। Okay, so we can solve one problem. If the radius of curvature of convex mirror is 10 centimeter, find its focal length. तो हमें पता है since f is equal to r by 2, this is 10 by 2, f is 5 centimeter. वेरी गुड, ये इसका आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द focal length and radius of curvature of
प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है, कर्व्ड नहीं होता। देखिए सरफेस जितना ज़्यादा बेंड होगा, देखिए ये सरफेस कितना ज़्यादा बेंड है, सरफेस जितना ज़्यादा बेंड होता है उसका सर्कल उतना छोटा होता है, और सरफेस जितना कम बेंड होता है उसका सर्कल उतना बड़ा होता है। करेक्ट। ये सरफेस आप देखिए ये ज़्यादा बेंड है तो इसका सर्कल क्या होगा, छोटा। तो जो सरफेस कम बेंड होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होता है, जो सरफेस ज़्यादा बेंड होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। ये सरफेस कम बेंड है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। अब प्लेन मिरर का तो सरफेस बेंड है ही नहीं, बिल्कुल भी बेंड नहीं है। सो याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कोई सेंटर होता नहीं है। करेक्ट, क्योंकि कवर्ड है नहीं तो इसका सेंटर नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा तो सेंटर हम मानेंगे ही नहीं, वो इन्फिनिटी पे मानेंगे, सेंटर नॉट डिफाइंड। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का होता है इन्फिनिटी। अब एफ होता है r/2, इन्फिनिटी/2। इन्फिनिटी/2 भी क्या होता है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होता है प्लेन मिरर का, ये याद रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एनी डाउट? No, sir. So our next topic is rules to draw ray diagram। अब टोटल 4 रूल्स हैं, थोड़े लेंदी रूल्स हैं। ओके, और इट वुड बी बेटर के टाइम भी होने वाला है तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में ही वो रूल्स को डिस्कस करें। तो आज हमने डिस्कस किया है सम प्रॉब्लम्स एज वेल एज सम टर्मिनोलॉजीज बेस्ड ऑन मिरर, और इनिशियल 5-10 मिनट्स हमने लाइट का बिहेवियर भी समझा कि वो ड्यूअल बाय नेचर होता है। ओके, सो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम एंड विल स्टार्ट विद इमेज फॉर्मेशंस। ओके।